Welcome to Artisans Changemakers, where we celebrate those who are crafting the future for us today for a better tomorrow. We had scheduled this for World Environment Day, but in fact, on that day, the UN launched a decade, so not just a single day, but a decade of ecosystem restoration to help restore and revive the ecosystems from burnt forests to drier deserts to evaporating rivers all over the world. And in this context, we invited Dr. Ismail Khatri, a 9th generation block printer who, together with his two sons, Junaid and Sufyan, have really built a new community in Ajrakpur. So Dr. Ismail Khatri got a doctorate from a UK university, honored for his leadership in craft, and he's an Ajrak block printer, and they're settled in this new settlement called Ajrakpur, and we'll talk to him about why they moved and some of the challenges that they have faced. So those of you who know Ajrak, that we have some samples behind me, and we will take the camera up close a little bit, but it takes 16 steps of resist, printing, dyeing in natural dye, and a lot of washing in between. So add to that the traditional Ajrak cloth was double-sided. The Maldharis of Sindh wore it, and it's a very special identity for the people of Sindh on both sides of the Indo-Pakistan border. I don't know whether you realize, but the World Environment Day was also hosted by Pakistan the other day. So it's very special to that part of the world. And with so many steps of laborious printing, but also the incredible use of water, you can imagine that in a place like Kutch, which is scrubland, leading to a desert at the run of Kutch, so you can imagine how fragile this relationship is between resources, particularly natural resources, and the craft economies and the livelihoods of the people of Kutch, and in particular Ajrak printers. So I just wanted to show up close some of these shawls, but perhaps Ismail Bhai can also do that. Sufyan Bhai is also joining us today. He is Ismail Bhai's son, who's really been a printer from when he was knee-high to a grasshopper. And I thought that it would be really interesting to hear from both of them cross-generationally about the changes that they have seen in the Ajrak livelihoods and the whole ecosystem there in Kutch. And no one better than for Dr. Ismail and his son Sufyan and Junaid, who know this firsthand, the kind of challenges that they faced just with fairly hostile environments. There are monsoons when they might just get a few drops of water, on a couple of days. So from the earthquake of 2001, which led them to move from Dhamadka, which is where they were all these years, 9 to 10 generations, to the most recent thing that has really helped them to harness water. And that is that in May, they inaugurated this water purification plant that Ismail Bhai and Sufyan are going to take us around. तो इस्माइल भाई, ये ऐसे शुरू हुआ जब आपने हमें डबल साइडेड स्टोल्स भेजे थे, और आप मुझे बता रहे थे कि ये बहुत ही
ट्रेडिशनल है और आपके पास जो भी ब्लॉक और डिज़ाइन है वो अभी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन्स है उनको भी ये समझ में आएगा कि ये मटेरियल क्या था, कैसे यूज़ हुआ था और कितनी सारी डिज़ाइंस थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी ये जो अजरक है ना, अजरक तो फेमस हो गया। ये हम लोग हमारे जो गांव है धमड़ का, वहाँ एक हमारे आंसेस्टर आए हुए थे सिंध से। उनका नाम था जिंदा जीवा। जिंदा, उसके बाप का नाम जीवा था। उन्होंने ये धमड़ का गांव पसंद किया था क्योंकि वहाँ पे एक रिवर था जिसका पानी थोड़ा साल्टी था लेकिन रंग के लिए अच्छा था। तो हमारे लोग ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके पैरवास बनाते थे और ये मालधारियों, रबारी, आहेर और कनवी पटेल वगैरह में बेचते थे। तो ये काम चलते चलते फिर ये करीब 60 के दशक में ये थोड़ा फैशन में गया। और सबसे पहले दो केमिकल कलर आए थे। एक था सिंथेटिक मैडर और एक था सिंथेटिक इंडिगो। ये दोनों इको फ्रेंडली थे कलर। फिर इसके बाद बाकी के जो कलर थे वो नेचुरल इस्तेमाल होते थे, ये दो सिंथेटिक कलर इस्तेमाल होते थे। इसके बाद ये जो नेपथोल के रंग आए तो उसके अंदर ये अपना केमिकल जो कलर था और ये केमिकल टॉक्सिक था, लेकिन हम लोग करते थे और हम लोगों को ये पता भी नहीं था कि ये कितना टॉक्सिक है। लेकिन इसमें थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी थे क्योंकि जो नेचुरल डाई वाला कपड़ा है वो देर से तैयार होता था। ये केमिकल वाला सुबह को चालू करे शाम को तैयार होता था, तो दूसरे दिन इसको बेच के पैसा मिल सकता था। इसके बाद ये जो 60 के दशक में जब ये फैशन में गया कि हमारे जो यहाँ मालधारी लोग थे उनके भी कुछ बिजनेस चेंज हुए, तो उनके पैरवास भी चेंज हुए, तो वो लोग भी कुछ ये पॉलिस्टर है या मिल की प्रिंटें पहनने लगे। तो हमारे कई लोग जो थे वो ये काम छोड़ के कहीं दूसरी जगह गए। ये कोई शॉप में रहा, कोई सरकारी नौकरी में गया, कोई बाहर चला गया। लेकिन हमारा ये जो धमड़का में हम लोग रहते थे, नदी था, थोड़ी सुविधा थी, तो ये काम पे टिके रहे। लेकिन ये नेपथोल था। फिर ये 60 के दशक में जब फैशन में गया तब एक 73 के अगल बगल में, 73 के अरसे में एक गुर्जरी शुरू हुआ था। सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन था, गुजरात स्टेट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो वो लोग कारीगरों से माल खरीदते थे और वहाँ एम्पोरियम में बेचते थे। हम लोगों को फैशन में क्या दिखेगा, ये तो क्या बिकेगा ये हमें पता नहीं था। तो वो लोग डिज़ाइनर बेचते थे और हमारे पास वो लड़कियां आती थी, हमारे घर पे रहती थी और लेआउट करती थी। ये हमारे पिताजी को ऐसा हुआ कि ये बच्चों को ये पुराना काम थोड़ा सिखा देंगे तो कभी काम आएगा। तो हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लिया। अभी क्या हुआ कि लोग जो हकीकत में ऐसा हुआ था कि यूरोप के लोगों ने ये जो एजो कलर थे वो बैंड कर दिए थे। और उसका कारण ये था कि वहाँ पे कुछ चमड़ी के कैंसर के लोग ज़्यादा थे। तो ये अपना WHO जो एनालिसिस किया, पता चला कि भाई ये जो चमड़ी का कैंसर हो रहा है वो ये रंग की वजह से हो रहा है। तो वो लोग बैंड किया था। तब ये जो कॉलेजों के अंदर और यूनिवर्सिटी में जो टेक्सटाइल का पढ़ते हैं उन्होंने सोचा कि पहले ज़माने में जो मम्मी के ऊपर से कपड़े मिले हैं इजिप्ट के अंदर, वो तो रंगे हुए हैं और प्रिंटेड है, तो ये कलर कौन सा है। तो जिनके पास जानकारी थी ये कलर की, तो वहाँ पे लोग आने लगे, जैसे हमारे पास आए। NID के अंदर कोई मेहमान आता तो हमारे पास भेज देते। फिर हम बातें करते थे। हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमको ऐसा शौक हो गया था, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाना को सीख गए थे। तो फिर ये जो लोग हमारे पास आते थे, कम्युनिकेशन करते थे, उसमें हम भी थोड़ा एजुकेट हुए और हमें भी पता चला
कि अपने को जब ये खाली पहनने वाले को इतना जो नुकसान कर रहा है तो बनाने वाले को कितना नुकसान करेगा। तो अपने को ये काम छोड़ना चाहिए और नेचुरल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि इलेक्ट्रिक बटन की तरह चालू बंद नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो फिर हम लोगों ने इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते गए, इसको हम ज़्यादा करते गए। तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि जो जो नदी था वो सूख गया धमड़का गांव के अंदर, और फिर हमको ये थोड़ा दिक्कत हुआ। तो फिर हम लोगों ने कुछ जमीन खरीदा, कुएं बनाए, टैंक बनाए, तो काम चला। लेकिन पानी का स्तर गिरता गया, हर साल 10-12 फीट नीचे जाता गया। तो हम लोगों ने सोचा कि डीप बोरवेल कर ले, इस साल तक देखना न पड़े। तो जब हम लोगों ने डीप बोरवेल किया तो वहाँ उसका जो धमड़का के नीचे का जो जमीन है उसके अंदर आयरन कंटीनेंट बहुत ज्यादा आया। तब हमको ऐसा लगा कि अब हम क्या करेंगे, या तो ये काम छोड़ देवें या गांव छोड़ देवें।